Hello students, in today's video we will be learning class 12 English lesson number 4.1. Name of the lesson is History of Novels. Now this is taken from your fourth section of the textbook. Fourth section has all novels. So 4.1 starts with history of novels, how novels started, what exactly are novels, their types and how it originated, and all this is there in your this lesson, history of novels. Whereas your 4.2, 4.3, 4.4 will have exact story of novels. So section 4 last year 11th में you had drama section, but now in 12th you will have all novel section. Okay, so before we start reading this lesson, if you are interested in more videos of 12th standard, you can visit my YouTube channel Learn with BS. You will find all the lessons, all the poems, writing skill, grammar section. If you really feel my videos are useful, hit the like button, subscribe to my channel for upcoming notification, and share it with your friends. Okay, so let us start with novel section, history of novels. This lesson, actually this chapter doesn't have any novel story, whereas 4.2, 4.3, 4.4 have exact story of actually novel, but 4.1 may actually you have to all read it. You have to read the whole lesson, because there you will find names of many novelists and names of novels, etc., years. So literally you have to read each and every line and memorize. Okay, I have highlighted the important points of this because I cannot put it in a story form. This is no more a novel, but how novel started. The 18th century जो है, it has gifted English literature with two things. One is periodical essay, another one is novel. अभी इन दोनों में से novel has been gaining popularity and growing gradually. Today it is recognized as the most dominant literary genre. लोग बहुत प्रेफर करते हैं नावल को. नावल क्या होता है? नावल इज़ अ रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस नॉर्मली इन अ प्रोज फॉर्म. जैसे स्टोरी होती है, बट नावल क्या होता है? लॉन्ग नैरेटिव, लॉन्गर वर्जन होता है, पूरे बुक में एक ही स्टोरी रहती है. प्रोज फॉर्म यू कैन से इट्स नॉट पोएट्री. और क्या होता है? द प्रेजेंट इंग्लिश वर्ड नावल, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन नोवेला विच मीन्स न्यू. इस वर्ड में से डिस्क्राइब निकाला गया है, नोवेला वर्ड से, उसका मतलब होता है न्यू. वी हैव सर्टन नेम्स, जैसे मुराकासी, शिकीबूज टेल ऑफ जेनजी 10,010 हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नावल. पहला नावल जो बना था. द यूरोपियन नावल इज़ ऑफन सेड टू बिगिन विथ डॉन क्विक्सटन. नाउ दीज इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, नेम्स, ईयर्स you will have to remember. Okay. And next is drama and poetry. They were literally forms and that were fading away. पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रामा, पोएट्री. अभी आपको देखोगे पोएट्री तो हमेशा पढ़ते हो, ड्रामा लास्ट ईयर 11th में किया था, बट नॉवल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम एंड सम न्यू फीचर्स वर एडेड टू देम. इसके लिए इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला क्योंकि न्यू फीचर्स थी. कि अभी नाउ these are all novels, name of the novels, novelist, years. तो you will have to read this and you have to memorize. अभी 18th century के ये सब जो है novelist हैं, names of the novels हैं, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा. then 20th century उनके जो है, तो I need not write, उसमें कुछ explanation part नहीं है. You simply have to remember all these. okay. contribution of women novelist, अभी ये तो मेल थी. अभी फीमेल में जो है, फीमेल में जो थी, ग्रेट पेंजेंट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, द नावल ऑफ मैनस एवेलिना बाय फ्रांसिस बर्नी. अभी ये जो था, ये सब जो है ये नावल्स हैं बाय विमेन, फीमेल नावलिस्ट. तो उसमें आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है. तो देन अगेन यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज नेम्स. देन कम्स इंडियन सिनेरियो. अभी इंडियन नावल, राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, serialized in the Indian field, was the first novel in English written by Indian. ये आपको ऐसे आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में. इंडियन जो नॉवलिस्ट थे जिन्होंने पहला नावल बनाया था, वो आ सकता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन.
Okay, then novella. What is novella? A novella, the word originated from the Italian word novel, is a type of prose fiction which is shorter than the full length of the novel and longer than short story. Story से थोड़ा बड़ा है, novel से थोड़ा छोटा है. It is novella. Okay, some of the famous novellas in English are. अभी novels के नेम पढ़े, अभी ये novellas. उनके भी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे. So these are all names of novellas in English. Okay, elements of novel और नावला. उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? देयर आर 6 एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर नावल और नावला, दोनों की 6 एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे थीम क्या होता है? थीम इज़ अ सेंट्रल आइडिया इन द नावल. देन सेकंड इज़ प्लॉट इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ द कोर्स ऑफ द इवेंट्स दैट टेक अप द थीम. जो स्टोरी लाइन है वो उसको बोलते हैं प्लॉट. क्या है उसका? थीम क्या है? ये सब जो है क्या है? 6 elements, essential elements. Okay, then third one is character. Characterization is created to the plot as the course of events take place because of certain behavior of the characters. उसको बोलते हैं characterization. characters जो play करते हैं कि जो main character होता है नावल का, जैसे फिल्म में हीरो होता है तो उसको main character को जो इसमें होता है उसको बोलते हैं protagonist. मेन कैरेक्टर, और उसका जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो यू कैन से कि विलियन टाइप, उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट. जो उसके कॉन्फ्लिक्ट में होता है, ऑपोजिशन में होता है. तो हीरो को आप समझो प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, विलियन को एंटागोनिस्ट बोलते हैं नावल में. देन है नेक्स्ट जो है वो है सेटिंग. नावल के ये सब एलिमेंट्स हैं. हाँ, नेक्स्ट इज सेटिंग. सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस. कहाँ पे स्टोरी हुई है, कौन सी प्लेस पे हुई है, वो सब. कॉन्फ्लिक्ट यानी जो स्टोरी में किसके ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है या किस बात को लेके पूरी स्टोरी बनाई गई है, दैट स्ट्रगल बिटवीन द ऑपोजिट फोर्सेस इन द स्टोरी इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. उसकी वजह से क्या क्यूरियोसिटी होता है, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, हीरो जीतेगा, विलेन का क्या होगा. तो वो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर स्ट्रगल है, जिसके ऊपर पूरा नावल लिखा गया है. देन लैंग्वेज और स्टाइल, वो क्या होती है? द वे इट इज़ रिटन, टेक्निक यूज्ड बाय द ऑथर फॉर द नरेशन ऑफ द कोर्स, उसको स्टाइल भी बोलते हैं. लैंग्वेज, स्टाइल. ओके, दीज वर ऑल 6 एलिमेंट्स ऑफ नावल. देन कम्स टाइप्स ऑफ नावल्स. टाइप्स ऑफ नावल्स कौन से होते हैं? रियलिस्टिक नावल्स. वो क्या होते हैं? इट इज़ अ फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म. समटाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नावल ऑफ मैनर, उसको वो भी बोला जाता है. कि देन वी हैव पिक्चरेस्क्यू नावल. वो क्या होते हैं? पिक्चरेस्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो विच मीन्स रोग, गुंडा. कि हिस्टोरिकल नावल्स जो आप समझ सकते हो एंशियंट टाइम के, अर्लियर दैन दैट ऑफ द राइटिंग, ओल्ड हिस्ट्री के बारे में. देन वी हैव एपिस्टोलरी नावल. एपिस्टोलरी नावल क्या होते हैं? द वर्ड एपिलोस्टरी डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एपिलोस्टा विच मीन्स अ लेटर. इसका मतलब होता है लेटर. ये लैटिन वर्ड में से लिया है कि एपिलोस्टी. देन वी हैव गोथिक नावल्स. व्हाट आर गोथिक नावल्स? नावल्स दैट इंक्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनैचुरल, इनको बोलते हैं गोथिक नावल्स. दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नावल्स. देन वी हैव ऑटोबायोग्राफिकल नावल्स. Autobiography, as you know, it is the life of the author. So autobiographical novel is nothing but on the life of the author. Then we have allegorical novel. Now allegory is story that bears more than one level of meaning. Okay, उसको बोलते हैं allegorical. These are all types of novels. Okay. Then we have utopian or dystopian novel. वो क्या होता है? It is an imaginary community or society possessing the ideal qualities. कि इमेजिनरी आप कम्युनिटी इमेजिन करो, ऐसी सोसाइटी बना रहे हो, बट उसको क्वालिटीज़ क्या है? रियलिस्टिक है, आइडियल, जो हम सोच के रखते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए. इमेजिनरी है बट उसको ये सब क्वालिटीज़ हैं जो हम इमेजिन करते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. देन वी हैव साइकोलॉजिकल नावल. साइकोलॉजिकल नावल इज़ द वर्क ऑफ फिक्शन, यानी मनगढ़ंत, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स. देन वी हैव स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल. अभी वो क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटीज प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890. इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स. ये सब नॉवेल्स के टाइप हैं. अभी आपको एग्जाम में शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे
what do these relate with? तो you should have little knowledge about like what किस तरह के नावल हैं, क्या है. बिल्डंगस्ट्रॉमन नावल, ये क्या है? जर्मन वर्ड है ये. इसका मतलब क्या होता है? इट इंडिकेट्स ग्रोथ. तो ये जो है फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कंसर्न विद द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. क्योंकि ये वर्ड का मतलब ही होता है ग्रोथ. तो जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है नावल का, उसकी ग्रोथ के ऊपर, उसकी स्पिरिट, उसके कैरेक्टर, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जो भी है उसके ग्रोथ के ऊपर ये सब नावल होता है. कि तो दीज वर ऑल डिफरेंट नावल्स एंड उसका जो किस तरह के नावल्स होते हैं, क्या होता है, कौन से वर्ड से डिराइव किया था. तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दिस थिंग. देन जो है लास्ट में वी विल लर्न इज फ्रैंकस्टीन बाय मैरी शेली इज़ 1823. इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट नावल बेस्ड ऑन साइंस. अभी आपको पता होगा कि साइंस फिक्शन पे भी नावल्स रहते हैं. तो ये जो था फर्स्ट नावल था बाय मैरी शेली जो साइंस फिक्शन पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर था. देन एक था डिटेक्टिव फिक्शन. यानी फिक्शन एज यू नो इट इज़ नॉट रियल बट इमेजिनरी स्टोरी. वो जो है डिटेक्टिव फिक्शन पे इन्वेस्टिगेट्स अ क्राइम ऑफ इन अ मर्डर. तो दीज आर ऑल हाउ नावल स्टार्टेड and main elements of novel, then types of novels. Now you have to read each and every line, but in exam you will get 4 marks objective type questions from this 4.1. You will not be asked to write the answer but objective type, जैसे match the following, pick out the odd man out, fill in the blanks with the correct option. Like this you will get 4 marks question in your board exams. So you just have to read it properly. You need not memorize each and everything, but you have to have knowledge about. जैसे मुराकासी शिकिबू, it is Tale of Genji. Novella is New. Then Quickstock is 70s. Then Rajmohan's wife, it is Bankim Chandra Chattopadhyay. You have to simply match the following. Then pick out the odd element from the group. You have been given certain words, you have to pick out the odd man out. Arun Joshi, Vikram Sheth, Graham Greene, Kiran Nagarkar. Now you have to pick out odd man out. इसमें से Graham Greene is odd man out. Why? Because all other are Indian authors. So if you read the lesson properly, you will remember कि ये Indian author है, ये नहीं है. Okay, but descriptive type question नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, but objective type ऐसे आएगा. So you have to read the chapter very nicely. प्लेस, पीरियड, थीम, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल. इसमें क्या ऑड मैन आउट है? इट इज़ थीम. वाई? बिकॉज ऑल अदर रिलेटेड टू सेटिंग ऑफ नावल. थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, नॉवेला. इसमें से ऑड मैन आउट क्या है? नॉवेला. वाई? बिकॉज दीज थीम, प्लॉट एंड कैरेक्टर ऑल अदर्स आर एलिमेंट्स ऑफ नावल. 6 एलिमेंट्स हमने पढ़े, उसमें ये सब एलिमेंट्स है, बट नॉवेला इज शॉर्टर वर्जन ऑफ नावल. सो दिस इज ऑड मैन आउट. कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द 2 types of conflicts that the plot may have are internal. You have to complete the statement. तो कॉन्फ्लिक्ट 2 तरह का होता है. इंटरनल दैट इज इनसाइड द माइंड एंड एक्सटर्नल विद अदर कैरेक्टर्स. द वर्ड पिकरेस्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकर दैट मीन्स अ रोग, स्कॉन्ड्रल, गुंडा. द एपिस्टोलरी नॉवल प्रेजेंट्स द नैरेटिव थ्रू series of correspondence of other documents. Everything I have taken from the lesson only. If you read nicely, you'll be able to complete the sentence. In the 18th century, middle class could get the time for reading and discussing the novels because of the spread of machines. So you will get questions like this in your exam. You have short notes, but exam mein you will not get short notes. But for your purpose, this knowledge, you can read style of novel, stream of consciousness novel, whatever is given in the lesson in paragraph form. You have to just revise this, read it for your lesson. So with this we complete all the activities of 4.1. I hope this was clear to you, you could understand. Thank you for watching this video.